ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ نہیں ہوا، ضرور اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر آج یہ ایک واقعہ پیش آیا تو اس کی مضمرات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں۔ ہم تو کیبنٹ میں تھے، جب کیبنٹ سے ابھی نکلے ہیں تو میں نے سنا ہے بالکل احترام اور آداب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پولیس ہو یا گورنمنٹ آف پنجاب ہو، اسے کوئی اس قسم کی حرکت سے کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے یا کچھ وہ گین کر سکتے ہیں۔ بالکل نہیں گین کر سکتے، اور نہ اس قسم کی حرکت ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، اس کا معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے، اور ان اصل حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی اس کا تدارک ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے بھی فرائض ہیں اور حکومت کے بھی فرائض ہیں، اور دونوں کو وہ حدود و قیود طے کر لینی چاہیے کہ انہیں ایکسیس ملے کورٹ میں جانے کی، اپنا مدعا پیش کرنے کی باعزت طریقے سے، اور جو دیگر کارکنان ہیں انہیں بھی ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نارملی پولیس تو ایسے واقعات کو اوائڈ کرتی ہے، کتراتی ہے، جو سمجھداری سے کام لینا چاہے۔ ہاں، احمقانہ حرکت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ذی شعور آدمی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ The honorable member has raised this issue. Let us look into it, probe, and see that an incident of this nature is not repeated. Thank you. Item number 3, Ms. Nusrat Wahid. Ms. Nusrat Wahid, please. بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ یہ ایجنڈا چلا لینا جی، ایجنڈا چلا لے، پھر آپ کو دے دیتے جی تھوڑا، تو چلو جی پلیز۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ میں قومی کمیشن برائے اطفال ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کرنے کا بل قومی کمیشن برائے حقوق اطفال ترمیمی بل 2020 پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ جی جسٹ ون منٹ آپ تشریف رکھتے جی۔ منسٹر صاحب، ڈو یو اپوز اٹ؟ شیخوپورہ میں آٹے کا مصنوعی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ ایک ماہ کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 200 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ شیخوپورہ میں بھی آٹے کا مصنوعی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ ایک ماہ کے دوران 20 کلو تھیلے پر 200 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ آٹے کا 20 کلو اور 10 کلو والا تھیلا بلیک میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی میں پسی عوام کی چیخیں نکل آئیں۔ بعض دکاندار 20 کلو والا تھیلا 1200 روپے اور 10 کلو والا تھیلا 600 روپے میں فروخت کرنے لگے۔ فیکٹری سے زیادہ ریٹ ملنے پر آٹا مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ منڈی میں گندم کی قیمت 2000 روپے فی من ہونے کے بعد فیکٹری مالکان نے آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کیا ہے۔ جی میں یہاں سے آٹا لینے کے لیے آیا تھا، مل کے سامنے کھڑا ہوں، مل میں سے آٹا نہیں مل رہا، اور دکانوں پہ گیا ہوں، وہاں پہ تو آٹا ہے ہی نہیں۔ پہلے ادھر ٹرک وغیرہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اب ٹرک بھی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ آٹے کا جڑا نا جی بہت بحران ہے اس ٹائم، تے مزدور آدمی واسطے بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ ٹرکاں تے ویکھیا ٹرک بھی نہیں کوئی لبا جی، کتے آٹے دا میلے چ آیا تے اتوں بھی کوئی نہیں ملیا ہے جی، تے ایک مہینے دے وچ 200 روپیہ مہنگا تھیلا ہو گیا۔ اسی مزدور آدمی جڑے نے ساڈے واسطے بہت پریشانی بنی ہے جی، بچے بھی بھوکے مرن ڈے نے جی۔ مل مالکان اپنی مدد آپ کے تحت منڈیوں سے مہنگے داموں گندم خرید رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ مہنگے داموں گندم فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی تو آٹے کا مصنوعی بحران نہ پیدا ہوتا۔ اعلیٰ کام ذمہ داران کے خلاف فوری نوٹس لیں اور عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ تو دوسری طرف بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے وجیاوالا کے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ تجمل قریشی کی رپورٹ۔
ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ تو دوسری طرف وجیاں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے، جس پر وجیاں والا کے شہری میپکو میاں چنو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ احتجاج کرتے ہوئے وجیاں والا کے شہریوں نے سچ نیوز کو بتایا کہ میپکو میاں چنو کی طرف سے وجیاں والا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پچھلے 2-3 ماہ سے جاری ہے، جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ گرمی کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں اور متعدد لوگ گرمی کی وجہ سے ہسپتالوں میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ بجلی کی مسلسل بندش پر کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے پچھلے 3-4 ماہ سے جب سے گرمی سٹارٹ ہوئی ہے یہ ہو رہی ہے۔ پہلے ان کا یہ بہانہ تھا کہ ہم جناب لائن چینج کر رہے ہیں، 25 تاریخ جو پچھلے ماہ کی گزر چکی ہے اس تک ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن عید کے 2-3 دن سکون رہا ہے، اس کے بعد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہے نا واپڈا والوں کی نائل لی ہے، یہ جو واپڈا کے لائن مین ہے نا ان کو ہم کال کرتے ہیں، کوئی فنی خرابی ہو جائے تو وہ جو ہے نا اپنا نمبر بھی بند کر دیتے ہیں، اور جو ہے نا ہماری کسی تیسری چوتھی دفعہ احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے نا مذاق بنایا ہوا ہے۔ مزید بتایا کہ میپکو میاں چنو کو متعدد بار غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں مطلع کیا لیکن تاحال لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی۔ انہوں نے میپکو خانے وال کے اعلیٰ افسران سے وجیاں والا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ تجمل قریشی، سچ نیوز، وجیاں والا۔ قصور کے علاقہ کھڈیاں خاص میں تقریباً 1 لاکھ آبادی کے لیے صرف 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے جو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں چودھری وسیم سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا علاقہ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں قصور کے علاقے کھڈیاں خاص میں۔ یہاں پہ پانی کم و بیش 1 لاکھ آبادی کے لیے 2 فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے اور وہ دونوں فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں۔ نہ تو ان پہ کوئی عملہ تعینات ہے اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اور نہ ہی وہاں پہ مدت ہو گئی ان کے فلٹریشن پلانٹ چینج کیے گئے۔ لوگ وہاں ویسے ہی آتے ہیں اور وہ گندا پانی، مضر سے پانی بھر کے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے نل تک اتار لیے گئے ہیں۔ اور دوسرا صفائی ستھرائی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ بالکل فلٹریشن کے ساتھ ہی، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو گندا پانی جوہر کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ساتھ ہی روڑی پورے محلے، پورے اہل علاقہ کا گند جو ہے وہ وہاں پہ لا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے۔ سر، فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے صاف پانی کے لیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہم یہ کہیں گے، یہ فلٹریشن پلانٹ کافی عرصے سے لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس کی ٹوٹیاں ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو فلٹریشن وہ آج تک کبھی کسی نے چینج ہی نہیں کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پانی اتنا گندا ہے وہ پینے کے قابل نہیں، لوگ پتہ نہیں کیسے اس کو برداشت کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ اس کے بعد جو ہے نا گندگی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ میری تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ فی الفور جو اس کو کام کروایا جائے۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی باتیں سنی کہ یہاں پہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اور بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ پورے علاقے کا گند پھینکا ہوا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ لوگوں کو صاف پینے کا پانی مہیا کیا جائے۔ جی بہت شکریہ چودھری وسیم۔ سناما بازار میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ منیر حسین کی رپورٹ۔ سناما میں مین بازار اور بخاری روڈ کا سیوریج سسٹم بالکل ناکارہ ہو گیا۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی بازار اور گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں اور دکانداروں کو اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھائی کئی دفعہ جو ہے نا ہم نے ریکویسٹ کیا ہے میونسپل کمیٹی میں جا کے، یہ جو گندا نالا گزر رہا ہے یہ پانی کی وجہ سے یہ اوور فلو کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری بازار میں جو ہے نا یہ گٹر کا پانی ہوتا ہے، سارے محلے دار اور نمازی جتنے بھی گزرتے ہیں پریشان ہیں۔ نکاسی کا برا حال ہے، پانی باہر نکلنا پایا روڈ مارکیٹ سے اصل جو دکاندار مارکیٹ والے بہت سارے پریشان ہیں۔ میونسپل کمیٹی دفتر سے آتے ہیں، وہ کوئی عملہ آتا نہیں، صفائی نہیں کرواتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں بھی سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی سناما کی انتظامیہ کا کہنا ہے جلد بخاری روڈ کی سیوریج سسٹم کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ بخاری روڈ سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ ہی دن سے چل رہا ہے، پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا۔ یہ تو اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم اس وجہ سے ہے کہ سیوریج کے ہم نے جو ہے وہ سسٹم کو تھوڑا چینج کیا ہے، اس کی رخ کو چینج۔ اور میونسپل کمیٹی سناما کے اعلیٰ حکام کو مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد نالے کی صفائی کرائی جائے تاکہ یہاں کے سیوریج کا نظام صحیح ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سناما۔ راجن پور کے محلہ کمانگرہ میں سیوریج کا پانی جمع ہو گیا، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ ملک طفیل کی رپورٹ۔
राजनपुर में शहर का सीवरेज सिस्टम ठप हो गया है। सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने की वजह से मोहल्ला कमार निगरा की गलियां तालाब जबकि गंदा पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि सीवरेज निज़ाम को फौरी तौर पर ठीक किया जाए। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मुतअद्दिबार इंतजामिया अफसरान को कह चुके हैं, लेकिन दिलासे देकर टाल दिया जाता है, जबकि सीवरेज का गंदा पानी गलियों और घरों में जमा होने से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। कैमरामैन मलिक उजैर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज राजनपुर। शेरगढ़ के तारीखी सुल्तान शाह कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा लिया। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं उसामा अली से। जी उसामा। के कब्रिस्तान सुल्तान शाह का शुमार पंजाब भर के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में होता है। इस कब्रिस्तान की सरकारी तौर पर सैकड़ों एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, लेकिन कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान पर भी अपने डेरे जमा लिए हैं। लोगों ने कब्रों को मस्मार करके ऊपर अपने अहाते कायम कर लिए हैं। इसके अलावा लोगों ने कब्रिस्तान में मवेशी बांधना और कूड़ा करकट फेंकना भी ममूल बना रखा है, जिससे अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले हजरात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जप्पा, सच न्यूज शेरगढ़। पिशावर में भी जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई, जबकि सब्ज हिलाली परचमों से तैयार करदा मलबूसात और दीगर साजो सामान के स्टॉल्स बाजारों में सज गए। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिशावर में भी जश्न आजादी की तैयारी जोशो जज्बे के साथ जारी है। पिशावर की कदीमी किस्सा ख्वारी बाजार में इस दिन के हवाले से स्टॉल सज गए, जिस पर सब्ज हिलाली परचमों से तैयार करदा मलबूसात, बैचेस, टोपियां और दीगर साजो सामान को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। और जश्न आजादी खुशी से मना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश होगा कि हम जिस हुकूमत ने जो तरीका बनाया हम उसी तरीके से बना ले। अल्लाह एक तो कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में एक वो फैला हुआ था। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा जोश खरोश से मनाएं और 14 अगस्त अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे और इंशाल्लाह पूरे जज्बे से मनाएंगे इंशाल्लाह। स्टॉलों पर मौजूद खरीदारी में मसरूफ शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद भी जश्न आजादी का दिन जोशो जज्बे से हर साल की तरह इस साल भी मनाएंगे। इस साल बहुत महंगाई है, पिछले साल से बहुत ज्यादा महंगाई है, तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे ये महंगाई कम से कम हो जाए तो बेहतर है। 14 अगस्त के दिन को मनाने के लिए शहरी पुरअज़म और पुरजोश है। महंगाई के बावजूद भी पिशावर के शहरी जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ अमल हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर। 14 अगस्त के करीब आते ही आरिफ वाला के बाजारों में लगे झंडे, झंडियों और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा भट्टो। आरिवाला में भी जश्न आजादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। जश्न आजादी की मुनासबत से बाजारों में लगे झंडे, झंडियों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है। मर्दों, खवातीन और बच्चे सभी जज्बा हुब्बुल वतनी लिए सब्ज हलाली परचमों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। अपने बैज वगैरह, झंडे वगैरह बच्चों के लिए खरीदारी करने के लिए आए हैं और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मुल्क अता फरमाया। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। लेने आए हैं जो 14 अगस्त जोश जज्बे से मनाई जा रही है। माशाल्लाह बहुत खुशी है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपने घरों के लिए सजाने के लिए बैजेस वगैरह लेने के लिए आए हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि वो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ज्यादा खूबसूरत अंदाज में अपने घर को सजाए। कोरोना खतरात के बावजूद यौम आजादी मनाने का आवाम का जोशो जज्बा दीदनी है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चिन्योट में भी जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर हैं और शहर भर में कौमी परचमों समेत दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। अब्दुल रहमान गलियार की रिपोर्ट। पूरे मुल्क की तरह जिला चिन्योट में भी जश्न आजादी की तैयारियां पूरे जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में जिला चिन्योट के बाजारों, चौकों, गलियों में झंडे, झंडियों, बैजेस और बरकी कमकमों के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए इन स्टॉल का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं 14 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में हम दुकानों पर आए हैं। हम झंडियां और झंडे खरीदेंगे और अपने घरों को सजाएंगे और 14 अगस्त धूमधाम से मनाएंगे। 14 अगस्त के लिए हम आए हैं, झंडियाँ झुंडियाँ खरीदेंगे और 14 अगस्त हम धूमधाम से मनाएंगे। हम 14 अगस्त की तैयारी के लिए आए हैं, तो झंडे खरीद रहे हैं ताकि हम अपने घरों को सजा सकें और 14 अगस्त धूमधाम से मनाएं। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाते हैं।
इसी रवायत को बरकरार रखते हुए जिला चिन्योट के शहरियों ने भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी कर रखी हैं। शहर की सरकारी इमारत समेत दीगर सब्ज़ हलाली परचम से सजा दिया गया है ताकि 14 अगस्त के दिन को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कल्यार, सच न्यूज़ चिन्योट। 14 अगस्त करीब आते ही मिंचन आबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए, जहां बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अजहर नदीम से। जी अजहर। जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आते ही झंडियों, बैनर्स और पाकिस्तानी झंडों से मुज़य्यन मलबूसात की स्टॉल लग चुके हैं। इस वक्त शहरियों की बहुत बड़ी तादाद झंडियाँ खरीदने और बैनर खरीदने में मसरूफ़ है। लोग अपने बैग पर भी झंडे लगा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पर भी झंडे लगा रहे हैं। बच्चे भी कपड़े हैं वो खरीद रहे हैं पाकिस्तानी झंडों वाले। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि ये बच्चों के लिए क्या खरीदने आए हैं और अपने लिए ये क्या खरीद कर ले जाएंगे। जी हम अपने बच्चों के लिए बैज खरीदने आए हैं और कुछ मलबूसात हैं। 14 अगस्त की जो तकरीब है इसमें शामिल होने के लिए हम पुरजोश हैं और जिंदा दलाने मैक्लोडगंज का सबूत पेश करने के लिए आए हैं कि हम पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे और जोशो खरोश के साथ मनाएंगे और अपने बच्चों के लिए और अपनी मोटरसाइकिल सजाने के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए झंडियाँ खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अपने गाड़ियों और घरों को सजाने के लिए झंडियाँ खरीदने आए हैं और इंशाल्लाह जोशो खरोश से हम जो है जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी शुक्रिया अजहर नदीम। मुल्क भर की तरह बूरेवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी यौम आज़ादी को कश्मीरी भाइयों के नाम करने का इरादा कर लिया। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह बूरेवाला में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी झंडियां, बैजल्स, टी शर्ट, कैप्स वगैरह खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। कमसन बच्चे से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस साल 14 अगस्त यौम आज़ादी की खुशियां अपने कश्मीरी भाइयों के नाम करते हुए कश्मीरी झंडा अपने घर पर लहराने का इरादा कर रखा है। मैं 14 अगस्त पे कश्मीरी झंडा खरीदने आया क्योंकि मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ 14 अगस्त मनाना चाहता हूँ। मैं अपने घर पे कश्मीरी झंडा लहराऊं। दीगर शहरियों ने भी कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर इस साल यौम आज़ादी को सादगी से मनाने की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम जश्न आज़ादी जो है 14 अगस्त साल से मनाते आ रहे हैं और इस दफ़ा मैं पूरी कौम से अपील करूंगा कि सादगी के साथ और ये जो 14 अगस्त है ये कश्मीरी भाइयों का नाम करें। 14 अगस्त हम हर साल बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं। इस साल हम सब पाकिस्तानी भाई जो 14 अगस्त की खुशियाँ कश्मीर के नाम करते हैं, इसका मकसद है कि हम जो ये जश्न सादगी से मनाएंगे। जो कश्मीर भाई एक साल से लॉकडाउन में है, इंशाल्लाह अगले साल हम सब ये कश्मीर आज़ाद होगा, उसके साथ हम पूरे जश्न के साथ इंशाअल्लाह ये जश्न आज़ादी 14 अगस्त दोबारा मनाएंगे। जब एक साल से कश्मीरी भाई कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन में किस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो ऐसे हालात में यौम आज़ादी के मौका पर बारगाह खुदावंदी में उनकी आज़ादी के लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ गो है कि आइंदा साल कश्मीरी भाई और पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी एक साथ मनाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़। लोअरदीर में भी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला लोअरदीर के शहरी 73 यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारी शुरू की है। लोअरदीर के जिले हेडक्वार्टर बाजार तेमरगरा समेत खालराबाद, जंदूल, तालाश और चकदरा के बाजारों में कौमी परचम, मुख्तलिफ किस्म के बेज के स्टॉल सजाई गई है। क्योंकि इस दिन हमारे जान का टुकड़ा आजाद हुआ था, इसकी वजह से हम यहाँ आज़ादी से रह रहे हैं। इसलिए जब भी 14 अगस्त आते हम यहाँ सामान के लिए आते, हम झंडा खरीदते, बेच खरीदते, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। आज़ादी के सम्मान के लिए हमने बेच खरीदे और ये टोपी भी खरीद लिया। लोअरदीर के शहरी यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए कौमी परचम, बेज और केब्स खरीदने में मसरूफ है, जबकि कौमी परचम से अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों को सजाए हुए है। लोअरदीर के शहरों ने यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारी शुरू किया और अपने घरों और गाड़ियों और दुकानों पर कौमी परचम लगाए गए हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदीर। कश्मीर में भी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अख्तियार सोलंकी की रिपोर्ट।
मुल्क भर की तरह कश्मीर शहर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। एक तरफ जगह जगह झंडे, झंडियां और बैजिस के स्टॉल सजा दिए गए हैं, तो दूसरी जानिब शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं और हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए झंडे, बैज और बहुत सारे झंडे घर में अपनी दुकानों की तरफ लगा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से नेमत जो हमें बुजुर्गों की मेहनत से मिली है वो है हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो आज़ादी की शक्ल में हमें मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल जोश और जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाते हैं। इस साल तो हमारा जज्बा और जोश बढ़ चुका है। उसकी वजह है कि कश्मीर इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा और इंशाअल्लाह जुड़ते रहेगा। वो दिन दूर नहीं कि हम और कश्मीरी भाई एक साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के हाथ में झंडा लहराया हुआ है। पाकिस्तानी झंडे के साथ एक और भी झंडा लहराया हुआ है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस है फिर भी लोग मना रहे हैं जश्न आज़ादी। जो मुल्क की हालात ख़राब हैं तब भी आ रहे हैं, अपने मुल्क के वतन के लिए आ रहे हैं और अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। जोर दे जो खरीदारी चल रही है अपने वतन के लिए जज्बे से मना रहे हैं। शहरों का यही कहना था कि 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी कौमी ईद की तरह मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़ कश्मीर। हर साल की तरह इस साल भी अहमदपुर के शहर चिन्नीगोट में 14 अगस्त शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट। इसी तरह अहमदपुर शहर शहर चन्नीगोट में भी 14 अगस्त करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज परचम हिलाली के स्टॉल सजा दिए गए। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जोश और खरोश से मनाने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने रुख कर लिया है सब्ज परचम हिलाली के स्टॉल का, जहाँ पर बच्चे और बड़े पाकिस्तानी झंडे और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। मुल्क भर की तरह शहर इलाहाबाद के शहरी भी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ हैं। मार हबीब की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरह इलाहाबाद के शहरी भी जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। बाजारों में नौजवानों और बच्चों का रश, गली गली कूचा कूचा में सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल सज गए। पिछले साल की तरह 14 अगस्त की चीजें खरीदने आए हैं। 14 अगस्त बड़े जोश और जज्बे नाल मना रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चों ने वतन पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए पाकिस्तानी परचम के कपड़े, चश्मे और टोपियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह बड़ी जोशो खरोश नाल मनावांगे, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियां नाल हासिल होया है और सानू बड़ी खुशी है साढ़े वड्डियां ने कुर्बानियां दी और सानू ये मुल्क मिलिया। वतन से मोहब्बत का जज्बा हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। वतन अजीज के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी इन्हें भुलाना मुमकिन नहीं। कश्मीर से इजहार एकजहती करते हुए कश्मीर के झंडे की मांग में भी इजाफा हो गया है। 14 अगस्त मनाने की खुशी में इलाहाबाद के शहरियों की तैयारियां उरूज पर हैं। गलियां, बाजारों और घरों पर सबज परचम लहरा दिए गए। कैमरामैन तनवीर के साथ महर खुबैब जताला, सच न्यूज इलाहाबाद। मुल्क भर की तरह बावलपुर के नवाही इलाके मुबारकपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जैसे जैसे आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, दुकानदारों की तो चांदी हो गई। दुकानों और स्टॉल्स को परचमों, झंडियों और दीगर सामान से ऐसे सजाया गया कि देखने वाले खरीदे बिना रह नहीं सकते। यासर नाज की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुबारकपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियों और बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हलाली परचम से सज गए। शहर की गलियों और इमारतें और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बच्चे, नौजवान और खवातीन खरीदारी में मसरूफ है। आज़ादी के जश्न को पहले से शानदार अंदाज से मनाने के लिए लोगों ने माह अगस्त का होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए अपने घरों वगैरह को सजाने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के अशिया खरीदने में मसरूफ है। पाकिस्तानियों को दिल से एक ही आवाज आ रही है, दिल दिल पाकिस्तान, जहां जहां पाकिस्तान। दूसरी तरफ दुकानदारों को कहना है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस साल यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। जहां शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, वहां देहात के बच्चे भी आज़ादी का जश्न मनाने में किसी से पीछे नहीं। कबीरवाला में बच्चे अपने कच्चे पक्के मकानों को रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से सजाने में मसरूफ हैं। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट।
जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लगती दुआ है दिल में लगन। जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा जहां वतन अजीज के छोटे बड़े शहरों के नौजवानों और बच्चों में बदर्जा उत्तम पाया जाता है, जहां आज़ादी स्टॉल्स पर बच्चे अपनी मनपसंद आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ अमल हैं, वहीं देहात के बच्चों में भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के तवज्जो से जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने में किसी से भी पीछे नहीं और अपने घरों की कच्ची पक्की दीवारों और मकानों की छतों को रंग बिरंगी और सब्ज हिलाली झंडियों से सजाने में मसरूफ अमल हैं। हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए हैं, जिससे हमने झंडे और झंडियाँ खरीदी हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। मैंने अपने अबू से पैसे लेकर ये झंडी खरीदी, मैंने अपने घर को सजाया है। तो कहीं गांव के बच्चे और बच्चियों की टोलियां सब्ज हिलाली झंडियों को बड़े इन्हामाक से एक ही धागे की लड़ी में परोकर इजहार यकजहती का नमूना पेश किए हुए हैं। कोई मकान की बालकोनियों और छतों से सब्ज हिलाली परचम लहराकर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है, तो कहीं देहात की गली महलों और सरसब्ज जमीन की गोद में अटकेलियां करते बच्चे कतार अंदर कतार सब्ज हिलाली परचम लहराए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मुल्क की हालात जिस कदर मुश्किल क्यों न हो, जिंदा कौमों के अफराद अपने वतन का जश्न आज़ादी पूरे मिली जोश और जज्बे से मनाते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को तख्लीक हुए आज 73 साल मुकम्मल हो गए। नवीद इकबाल की रिपोर्ट। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। सब्ज हिलाली सफेद कपड़े पर जब चांद और तारा बना दिया जाए तो यह पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान सब्ज हिलाली परचम कहलाता है। आज 11 अगस्त परचम की तख्लीक के दिन की मुनासबत से डस्का में हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। डस्का के शायरी परचम की शान पर क्या कहते हैं? परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। हमारा परचम सब्ज हिलाली परचम हमारी शान, हमारी आन, हमारी जान है। मुझे अपने परचम पे बहुत नाज है, ये हमारी जान है। पाकिस्तान के कौमी परचम पाकिस्तान के आजाद होने से 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को आइन साज असेंबली में अपनाया गया। पाकिस्तान के परचम को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पर जब अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिजाइन किया तो वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने झंडे में रद्द-ओ-बदल करते हुए इसे बरतानिया से मंसूब करने की कोशिश की, लेकिन कायदे आजम ने यकसर मुखालफत की और अमीरुद्दीन के डिजाइन करदा झंडे को ही पास किया और इसे फौरी तौर पर मास्टर अल्ताफ हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किया और इसे दस्तूर साज असेंबली में 11 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान ने लहराया। आज परचम की तख्लीक को 73 साल मुकम्मल हो गए। सब्ज हिलाली परचम हमारी जान है, हमारी पहचान है। मुझे पाकिस्तान के झंडे से प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक पाकिस्तान के अहम और सरगर्म हीरोज अमीरुद्दीन कुदवाई और मास्टर अल्ताफ हुसैन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टोबा टेक्सिंग में माइनॉरिटी डे के हवाले से जिला काउंसिल हाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ टोबा टेक्सिंग जिला कौंसिल हाल में, जहां माइनॉरिटी डे के हवाले से आज तकरीब मुनक्कद की गई है। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फरूक समेत शहरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे शरीक थे। सिख कम्यूनिटी भी यहाँ पे शरीक थी। मसीही अफराद जो है वो भी इस तकरीब में शामिल थे। आज यहाँ पे रंगारंग तकरीब की गई, बच्चों ने टैबलो भी पेश किए गए। मेरे साथ मसीही रहनुमा मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आज की तकरीब किस तरह से देखते हैं? आज की तकरीब में हमने बहुत कुछ देखा कि पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ है और बिलखसूस टोबा टेक्सिंग में हम अपने कायद चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब के साथ हैं, डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर साहिबा के साथ हैं और हमने आज के दिन ये अहद बांधा है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो एक परचम में है उसके तले हम सब एक हैं। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है और पाकिस्तान की बका की खातिर हम सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हैं। मैम आप बताएं कि आज की तकरीब में किस तरह से देखते हैं? आज की तकरीब में ख़ास तौर पर जो बात सामने आई है कि माइनॉरिटीज़ डे मनाने से ये साबित हो गया कि हम माइनॉरिटी जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और हमारे जो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, इसकी खिदमत में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान में खुश हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, अमन के लिए दुआ भी मांगी गई है और जश्न आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया है। बहुत शुक्रिया सुल्तान। कसूर में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज बरवत और डिप्टी कमिश्नर मंजर अली जावेद की ज़ेर सदारत क़यादत में शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिले पुलिस की भारी नफरी और जिले इंतजामिया के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी हुकूमती फैसले के मुताबिक रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए, जहां एसओपीज पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। इरफान गुज्जर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत भी जारी की गई है। आज से हम रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं मुकम्मल एसओपीज के साथ। हमने जो भी एसओपीज गवर्नमेंट ने भेजी है उनको फॉलो किया है और गैदरिंग जो हमारी फर्ज करें 100 की थी उनको हमने 50% में कन्वर्ट कर दिया है। इंटरेस्ट पे हम बाकायदा कस्टमर का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, प्रॉपर स्टाफ को हाइजीनिकली और मास्क और कैप्स वगैरह के साथ जा रहे हैं और लोग स्टाफ खास करके काफ़ी खुश है कि 5 महीने के बाद वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि तवील बंदिश ने कारोबार को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमती फैसला खुश आइंद है। एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। लॉकडाउन में कोरोना के बहाव के बंद होने की वजह से जो रेस्टोरेंट बंद हो गए थे अब वो खुल गए। हमें इंतहाई खुशी है कि हम यारशा होटल में खाना खाने के लिए आए हैं और इधर हमने एंट्री के लिए एसओपी के साथ उठाया गया है। सैनिटाइजर वगैरह टेबल पे रखे हुए हैं, हमारा टेम्परेचर वगैरह चेक किया। हमें खुशी है कि ये इधर रेस्टोरेंट खुल गए हैं। कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करने के लिए हुकूमत ने तमाम कारोबारी मराकज को एसओपी से मशरूत कर दिया था। कोरोना वबा में कमी के साथ ही रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है। कैमरा टीम के साथ इरफान गुज्जर, सच न्यूज, सियालकोट। लॉकडाउन से जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं चित्राल में शहद का कारोबार करने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। शहद न सिर्फ तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है बल्कि इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शिफा भी है। ये शहद मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर शहद की मक्खियों के जरिए तैयार होता है। जंगल में भी कुदरती तौर पर पाया जाता है, मगर आजकल इसे फार्म के अंदर मक्खियों के जरिए तैयार करवाया जाता है। लकड़ी से बने हुए संदूक नुमा पेटियों में इन शहद की मक्खियों को पाला जाता है और ये पेटियां ऐसी जगह रखी जाती हैं जहां आसपास दरख्त और पौधों में फूल मौजूद हों, क्योंकि ये शहद की मक्खियां इन फूलों का रस चूसकर पीती हैं और इससे शहद बनता है। 1 माह बाद इनको पेटियों से निकालकर एक खास मशीन में डाला जाता है और इसे तेजी से घुमाकर हवा के दबाव से शहद निकाला जाता है। इसके बाद इनको मुख्तलिफ बर्तनों में पैक करके भेज दिया जाता है। कोरोना से जहाँ दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं शहद की सनत को भी बहुत नुकसान पहुँचा है। बस इस मुश्किलात का सामना है कि इस साल पर ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना हमारा कारोबार बहुत ज्यादा खराब हो गया। बस ये होना चाहिए कि वो कर्जे का ऐलान करे कि यार ये मक्खियों वालों को कर्जा दे तो अच्छा होगा। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी माली मामलत की जाए और बिलासूद कर्जा दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी होने लगी। हुकूमती लिहाज से साहिवाल शहर को कोरोना फ्री सिटी करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं तशाम अली की इस रिपोर्ट में। साहिवाल हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की मेहनत रंग ले आई। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीईओ हेल्थ अजहर नकवी और डॉक्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने में हरावल दस्ते का काम किया और आखिरकार इनकी मेहनत का समर इनको साहिवाल कोरोना फ्री सिटी मुंतखब होने पर मिल गया। इस मौका पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जहद कमाल सिद्दीकी का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल में कोरोना की वबा ना होने के बराबर रह गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव मरीज अभी हॉस्पिटल में तो नहीं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी में मौजूद हैं। तो हमारी दरख्वास्त है आवाम से कि वो एहतियात जारी रखें, जिसके अंदर मास्क का इस्तेमाल, हाथों को बार बार धोना और क्राउडेड जगहों पे, रश वाली जगहों पे जाने से परहेज करना है। अगर ये इन्होंने जारी रखा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान से कोरोना जल्द ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ मलिक इत्शाम अली, सच न्यूज साहिवाल। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया गया। सैयद हसनैन अली से मजीद जानते हैं। जी हसनैन। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह बिहाड़ी में प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसके क़यादत पार्लिमानी सेक्रेटरी राय ज़हूर अहमद खल कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA राय ज़हूर अहमद खल। मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हर शहरी जानता है कि पाकिस्तान में पौधों की क्या अहमियत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इंसानी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
इसलिए इमरान खान वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक विहाड़ी में भी मुहिम शुरू कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इसमें मुकम्मल दिलचस्पी लेकर विहाड़ी को खूबसूरत बनाने में बहुत तावन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राय ज़हूर अहमद खल का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक विहाड़ी में 53,000 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आज यहाँ विहाड़ी में राय ज़हूर अहमद खल साहब ने बाकायदा तौर पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें मैं राय ज़हूर अहमद को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर ये जो इमरान खान साहब की टाइगर फोर्स है, ये यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज जिस तरह टाइगर फोर्स ये पौधे लगा रही है, इसी तरह इनकी हिफाजत भी करेगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का कहना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इमरान खान की विजन के मुताबिक ये पौधे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान की जो टीम है टाइगर फोर्स के नाम से जो बनाई गई है, ये इसी तरह इन पौधों का ख्याल भी रखेगी। जी शुक्रिया हसनैन। अटक की तहसील हजरा में भी मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। शजरकारी मुहिम में सैकड़ों की तादाद में टाइगर फोर्स के नौजवानों की ने शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने टाइगर फोर्स के जवानों की हौसला अफजाई की। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।